جی ناظرین، تو یہ کینجھر جھیل انگریزی میں لیک کہتے ہیں۔ ایوب کھوسہ صاحب نے ہم کو دعوت دی کہ بھائی آ جائیے، تو ہم چلے گئے۔ اور بھیا اس کے بعد ایوب صاحب نے ہم کو بغیر بتائے اس بوٹ رائڈ کا انتظام کیا ہوا تھا، اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔ یہ قدیر ہیں ہمارے ناکو عبد القدیر، اور یہ بوٹ چلائیں گے۔ پلاسٹک کی بوٹ ہے، فائبر گلاس کی، اور یہ بوٹ استعمال کی جاتی ہے جو بڑے جہاز ہوتے ہیں جو کراس کنٹری یا مختلف ممالک کے درمیان ٹریول کرتے ہیں، اس میں لائف سیونگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، بیٹھ گئے۔ کیمرہ مین خالد صاحب آئے نہیں۔ ایوب صاحب نے کہا بھائی بیٹھو، بیٹھ گئے بھیا۔ اور یہ مائٹی کینجھر جھیل، اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 70 فٹ سے زیادہ ہے۔ بھیا بیٹھ گئے۔ مخدوم صاحب جو ہے یہ یہاں کے کرتا دھرتا ہے، بیٹھ گئے ان کے ساتھ۔ اچھا یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مچھلی پکڑنے کی نئی ٹیکنیک ہے یہاں کے مچھیروں کے پاس۔ تو ماہی گیر یا مہانے فش پکڑتے ہیں اس طریقے سے، وہ ہم دکھائیں گے۔ اور یہ جگہ جو ہے، ہم یہاں آ گئے تھے، اور یہاں پر ہمیں سامنے دور ایک کشتی نظر آئی۔ تو ہمارے جو بھائی صاحب پیچھے عبد القدیر، مجھ معصوم کو بٹھا کے، اور انہوں نے کشتی کی رفتار بڑھا دی۔ اور بھیا کشتی تقریباً اگر روڈ پہ ہوتی تو 70-80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہوتی، اور یہ معصوم وہاں کے جو مقامی مچھیرے ہیں ان کو روک کر اس طرح سے ہمیں چھاپا مارا جیسے کہ باہر کے ممالک میں جو ان کی فورسز ہوتی ہیں، میری ٹائم ایجنسیز اور پتہ نہیں بارڈر سیکیورٹی، چھاپا مار، اس طریقے سے ہم نے ان کو روکا۔ تو وہ بیچارے گھبرا بھی گئے، لیکن ایوب صاحب کو چونکہ ان کا انٹرویو کرنا کہ یہ لوگ یہاں پر کس طرح رہتے ہیں، اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں، تو یہ انٹرویو کرنا بڑا لازم تھا۔ تو ان کو ہم نے اس کشتی پہ چھوڑا، اور پھر ہم لوگ جو ہیں اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ لیکن بھیا جو جھیل کا پانی ہے وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایوب صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ سورج کی روشنی کا زاویہ اتنا خوبصورت کہ میں کیا کہوں آپ سے، جسٹ واو۔ اور ہم نے ناکو جو ہے قدیر صاحب ان سے کہا کہ بھائی ہماری جو بوٹ ہے اس کو آپ ایوب صاحب والی بوٹ کے اطراف میں زیرو سرکل ہوتا ہے نا، او سرکل یا زیرو سرکل، اس طریقے سے گھمائیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کا جو زاویہ ہے وہ اس کشتی کے اوپر کس طرح سے پڑ رہا ہے، اور کیا خوبصورتی ہے پوچھ رہا ہے کہ مچھی کیسے پکڑتے کینجھر ہیں، کیسے جھیل کھاتے کی۔ ہیں۔ آپ سب کو جانا چاہیے، پتہ ویسے چلا کہ کیا زبردست جگہ ہے۔ آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی ایوب صاحب انٹرویو لینے میں مصروف، ہم اپنی کشتی میں گھومنے پھرنے میں مصروف، اور سورج کا جو یہ اینگل، یہ زاویہ ہمیں نظر آیا، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے الفاظ نہیں میرے پاس۔ عطا بلوچ صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام، مخدوم صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن عطا بلوچ صاحب جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، پی ٹی وی کے حوالے سے بہت بڑا نام، اور پی ٹی وی کو بام عروج تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ یہ سامنے ایوب صاحب کی بوٹ نظر آ رہی ہے، جہاں پر کہ یہ ابھی بھی
इंटरव्यू करने में मसरूफ़ हैं। मखदूम साहब हैं, इनके सारा ही और मखदूम साहब जो है अता साहब को कंपनी दे रहे बलोच हैं। साहब हमारे एंड मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात GM थी साहब, कि अता बलोच साहब के प्रोड्यूसर, साथ डायरेक्टर, मैं कोर्ट में शायर, मौजूद था। एक इन्होंने ज़बरदस्त अनगिनत ड्रामे थिंकर किए हैं। हैं कराची टीवी सेंटर से पीटीवी पे बहुत और कम ऐसे क्वेटा लोग हैं सेंटर जिनकी से वजह भी। से पीटीवी बना। उसके उसमें बाद अता साहब एक है। पीटीवी के बड़े बड़े ओहदों से इनकी मोहब्बत की गुज़रते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। रिटायरमेंट इख्तियार करी। और चले जी, अयूब भाई अयूब ने कोसो सबको साहब फंसाया के हुआ, करीब उतर के चलते जा भी हैं नहीं सकते नीचे, कहाँ और उतर के ये जाए। पानी देखें, डीप ग्रीन सी तो खैर नहीं है, मेरे लिए बहुत एक काबिल इज़्ज़त लम्हा कोई जर्क नहीं कि है, अता बलोच साहब के साथ एक वीडियो बनी और गुफ्तगू हुई, कैमरों के हवाले से बातचीत हुई। तब तक अयूब साहब जो हैं, अयूब कोसा साहब, वो हमारी कश्ती में वापस आ चुके थे और मखदूम साहब के साथ महवे गुफ्तगू। तो मैंने कहा यार भाई इधर देखो भाई, अयूब भाई इधर देखें। ये हालात तो अब जो है हम जा रहे हैं नूरी जाम तमाची के मज़ार की जानिब। ये एक सिंध के हवाले से रोमांटिक लव स्टोरी है नूरी जाम तमाची की। हम उनके मज़ार की जानिब जा रहे हैं। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आता कि अतराफ़ में इतना सारा पानी हो, हर तरफ पानी हो, और वो भी 60-70 फुट गहरा, और उस पानी के दरमियान में किसी ने मज़ार बनाया हो। मेरी अक्ल ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मखदूम साहब चूँकि इस इलाके के करता धरता हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, और हम उनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी मुलाजिम हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू करी उसमें इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया कि नूरी की कब्र यहाँ नहीं हो सकती। ये देखिए सूरज, तो आप उन्हीं की ज़बानी सुन, ये है, ये वो जगह है जो कि कहा जाता है कि नूरी की आखिरी आरामगाह है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने हमारे जो नाका हैं कदीर, उनसे कहा कि हमें घुमाइए अतराफ़, चारों तरफ ले जाइए, फिर हम फ़ैसला करेंगे क्या ये जगह वाकई कब्र हो सकती है इस जगह पे या नहीं। लेकिन मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप चूँकि देख रहे हैं तो आप इस बात का फैसला कर सकते हैं और इस क्वेश्चन मार्क को है और कहा जाता है एक कि पॉजिटिव मशहूर आंसर में तब्दील क्या कर है। सकते हैं। और आप देखें चारों खैर तरफ हम यहाँ पानी, पर उतरे और मगरिब होने वाली थी, पानी हर तरफ और ये पानी। खूबसूरत मंज़र यहाँ पर जो कि हमने कब्र अक्सबंद कैसे किया बनी, था, तो हमने क्या कहा आपसे हुआ। ज़रूर उसको शेयर करूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत है यार, वाह वाह सुभान अल्लाह। चलिए ऊपर की जानिब चलते हैं, ऊपर से भी आपको कम से कम सूरज तो दिखा दूँ ना ढलने से पहले, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी एक मुश्किल मरहला था। अब ये आप इनकी ज़ुबानी सुनिए जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना, मखदूम साहब जो कह रहे थे कि जो नूरी की कब्र है यहाँ पर होना मुमकिन नहीं है। वो मकली जो कब्रिस्तान है बड़ा मशहूर, ठट्टा में मकली कब्रिस्तान, नूरी की कब्र वहाँ पर है। जाम तमाची की कब्र भी वहाँ पर ही है। जाम तमाची, जाम का मतलब होता है कि बादशाह, और जाम जो थे तमाची शिकार विकार करने आते होंगे उन दिनों यहाँ पर, तो नूरी पे नज़र पड़ी होगी, शादी का इरादा किया होगा, बड़ों ने मना किया होगा, उस वजह से उन्होंने छुप छुपा के शादी कर ली। फिर और जिस वक्त औलाद होने वाली होगी तो उन्होंने कहा चलो निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ये हिस्ट्री है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री है। तो फिर उनको जो है वो माशरे ने कबूल नहीं किया, और शायद यही वजह उनकी मौत का बायस बनी। यही बात जो है वो मखदूम साहब भी बता रहे हैं। मैं इसकी ऑडियो ऑन कर देता हूँ ताकि आप सुन सकें। सिस्टम हुयो त 54 फुटनि ते लेवल हूंदी त हिननि 60 फुट ते हिनखे रखी छॾियो आहे त हिन जे लेवल 54 खां ईंदो त ऑटोमेटिक बंदि क्रॉस पाणी टुटी वेंदो। त हिननि खे उन लेवल ते हिननि रखी, ऐं उहा तारीख़ी जॻह, उहा निशान नूरी जो ऐं हुंदल शाह हिन सां गॾु आहे, जेको बुज़ुर्ग हुयो, जेको तारीख़ ॿुधाई थी त हिनखे कोढ़ जी बीमारी लॻी, पोइ माइट हिनखे हिकिड़े खणी हिन जंग हिते कब्रिस्तान में हिते हिकिड़े वण हूंदो हुनजे हेठां छॾे विया। हुंदलो शाह, हुंदल शाह जेके चयो वञे थो, हुंदड़ो शाह चयो वञे थो,
उहो किथां निकिरी वेंदो दरवेश हूंदो हुयो, उहो ईंदो हुयो त या इनखे मानी अची ॾेई वेंदा हुआ, उन ई दुआ कईसि ऐं पोइ जेको सो या वरी हिन जो कोढ़ छॾे वयसि, अञा बि हिन जो हुस्न जेको आहे न बाल बाल उन खां वधीक थियो। पोइ जॾहिं हिन वफ़ात पाई त हिन वसियत कई त मूंखे हिते साईं हुंदड़ो शाह जो जेको जंहिं मूंखे बुज़ुर्ग दुआ कई हुई हिते ई दफ़नायो वञे, त हिते दफ़नाई वई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या फरमाया। सूरज देखो यार, दुनिया में इतना खूबसूरत सनसेट शायद ही कहीं पर हो। बहरहाल हम तो यहाँ गए और ये जो खूबसूरती है ये कैमरा अक्सबंद नहीं कर सकता, नो वे कि ये कैमरा इसको कैप्चर कर सके। जो खूबसूरती है अल्लाह की तरफ से जो 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल या 5 डायमेंशनल हमारी आँख को अल्लाह ने बनाया है। हाँ जी, ये कब्र है माई नूरी की। अब आप खुद फैसला कीजिए कि अतराफ़ में पानी हो इतना ज़्यादा तो कौन लोग यहाँ पर आए होंगे और कब्र बनाई होगी, और इतना ऊपर कैसे बन सकती है यार। मुझे लग रहा है कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र भी ग्राउंड लेवल से नीचे है, इस जगह पर भी कब्र जो है वो नीचे ही हो सकती है, लेकिन नीचे तो पानी है। ह्यूज क्वेश्चन मार्क। सनसेट देखें आप, अपने जहन पे बोझ मत डालिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखें मेरे कैमरे ने स्लो मोशन बनाया था, हालांकि पानी बहुत ज़बरदस्त था और रोशनी कम होती चली जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने चांस लिया और ये एक आर्ट वर्क बन गया, आप भी देखें। और अब हम पहुँचेंगे वापस अपने रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस की जानिब। किंजर हम वहाँ पहुँच गए हैं, मगरिब हो चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका है और अब जो है हम तो ये मुझे यहाँ आकर खाने की जानिब जाएंगे, डिनर की जानिब, जहाँ पर हम फ़िश बारबेक्यू और दूसरी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा रेस्ट हाउस है, ये सेंट टूरिज़म वालों का। और ये मेरी गाड़ी और लाल वाली अयूब साहब की गाड़ी, हमारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं और हम वापस आ जाते हैं अपने लॉन की जानिब, जहाँ पर अयूब खोसा साहब जो हैं वो फ़िश टिक्का या फ़िश बारबेक्यू बना रहे हैं। और ये जो फ़िश है, क्या तारीफ़ करूँ इसकी यार, खूबसूरत, रोशनी भी अच्छी लग रही है, फ़िश भी अच्छी लग रही है। अच्छा, हो सकता है कि नाजरीन को इस वीडियो में आगे जाके थोड़ी रोशनी कम लगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम तो था नहीं। जो अवेलेबल पोल्स के ऊपर जो लाइट थी, हमने उसमें ये रिकॉर्डिंग करी है। फिश बारबेक्यू तो ये जो फ़िश है ये जल रही थी, तो मैंने अयूब साहब को आवाज़ दी, मैंने कहा भाई आइए और आके देखिए कि ये कैसी बन रही है। तो अयूब साहब आए। गरम आ अच्छा, इस पर देखिए कोयले चिपक गए, तो हमारे जो बंदे हैं सादा, क्या ना सादा, हाँ अयूब साहब के हेल्पर हैं सादा, उन्होंने उनको कोयले वगैरह साफ़ किए। फ़िश बहुत खूबसूरत बन रही है, इंतहाई लजीज, और इसमें जो मसाले डले हुए हैं अयूब साहब ने बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ नमक और लाल मिर्च। आए मेरे बेबीज़, मतलब बेबी, ये दो मासूम डॉगीज़ यहाँ बैठे होते हैं, मतलब उनको खाली मैंने प्यार से बुलाया। प्यार करो, प्यार से बुलाओ। ये देख कैसे आ रहा है बेचारा। तो क्या थोड़ी देर में ड्या तो थोड़ी देर में तू ड्या तो सब्र कर, थोड़ी देर में तू ड्या तो थोड़ी देर में सब्र। ये रही हमारी फ़िश, तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। अब इसको जो हम सर्व करेंगे, फ़िदा ढक्कन साहब और दूसरे जो मेहमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फ़िदा साहब के रेफरेंस से हमें इस फ़िश के साथ साथ खाना भी भिजवाया गया था, बिरयानी वगैरह। लेकिन चूँकि हम किंजर झील के किनारे थे, तो हम मुर्गी या कुछ और खाने के मूड में थे नहीं, हमें तो बस मच्छी खानी थी, फ़िश खानी थी। और अयूब साहब ने अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़बरदस्त ये फ़िश टिक्का या फ़िश बारबेक्यू बनाई थी। चूँकि मेहमान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे हिस्से में बहुत ही कम आई, अयूब साहब के हिस्से में बहुत कम आई, लेकिन जितनी भी आई उसका जायका उफ़, नाकाबिले बयान, यस, बयान नहीं किया जा सकता। मसरूफ़ अमल
فش ٹکا یا فش باربیکیو کے حوالے سے ایوب کھوسا صاحب گڈ مین یار. واپس دریا میں چلی جائے کھانا گی یار. لگ گیا بھیا, فش آ گئی ہے, نیمبو ڈالا جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, واہ 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 ایوب صاحب واہ. نیمبو ڈال کے اس فش کو جب ہم نے کھایا, ایوب صاحب میں کیا ایکسپرٹیز کہوں؟ شامل ہیں. اسپیچ لیس. اچھا یہ لوکل کھانا بھی آیا تھا وہاں سے. یہ پلیٹر تھا, اس میں بریانی تھی, پلاؤ تھا, فش تھی, فش کا مسالہ تھا, اور سلاد تھا بہترین. جس نے تو مطلب وہ ٹاپنگز ہوتی ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, 4 چاند لگا دیے تھے کھانے کو. تو یہ بھی بڑا زبردست آ گیا تھا, اسے بھی کھایا گیا, فش بھی کھائی گئی, اور اس کے بعد ہم سب سکون سے جا کے سو گئے.